dear learners, welcome back to the channel with the new chapter of class 2nd science, chapter number 12, that is about the sun, light and shadow. Students, in this session we will learn that from where does light comes, what are the different sources of light. Then we will also learn about the concept of shadow. Alright, so first of all you have to unjumble the given words. यहाँ पे आपको जो words given है, you have to unjumble them. So the very first word is what? This is sun. S-U-N, sun. Second is moon. M-O-O-N, moon. Third is stars. S-T-A-R-S, stars. And the last is shadows. S-H-A-D-O-W-S, shadows. Alright? So now let's start it. So we all need light to see things. We cannot see in the dark. What sources of light do you use every day? Students, किसी भी particular object या thing को देखने के लिए हम सभी को light की ज़रूरत है. Without light आप कोई भी चीज़ को देख नहीं सकते हो. ठीक है, आप darkness में यानी कि अंधेरे में we cannot see anything. Why? Because there is no light present over there. ठीक है, so now what sources of light? अब हम everyday basis पे किन different sources of light को use करते हैं to make the things visible. So first of all, the topic is light comes from many things. Light आपको different things से मिलती है. Number one, we have sun. Sun जो है सबसे biggest source of light है on the earth. Alright, it allows us to work and play. Sun की वजह से ही आप work कर पाते हैं. You are able to play because without the light of the sun, अगर sun की light नहीं होती तो earth पे life possible ही नहीं होती. Alright, it warms the world. Sun की जो light rays है वो हमारे world को warmness provide करती है so that plants grow कर सके and animals survive कर सके on the second source of light है moon. ठीक है, at night time there is moonlight. So day time पे sun की light rays होती हैं and night time पे moonlight होती है जिससे आपको light rays मिलती हैं. But moon does not have its own light. Very important कि moon की अपनी खुद की light नहीं होता है. Moon जो है sun की light rays को reflect करता है. And moonlight जो है it is not very bright also. Sun के comparatively moonlight इतनी ज़्यादा bright नहीं होती है. Then stars also give out light. Stars भी light produce करते हैं. But their light is not bright. ठीक है, उनकी लाइट भी बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होती है बिकॉज दे आर वेरी 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 फार अवे. ये हमसे बहुत दूर है अर्थ से, इनका क्या है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इनकी लाइट रेज इतनी ब्राइटली फॉल नहीं करती है. ऑलराइट, इनकी लाइट जो है काफ़ी डिम होती है. नेक्स्ट वी हैव व्हाट? बर्निंग फ्यूल्स. सी अ कैंडल व्हेन लिट, जब आप एक कैंडल को लिट करते हो वो भी लाइट प्रोड्यूस करती है. And the candle flame is small and gives a dim light. And क्योंकि कैंडल की फ्लेम बहुत छोटी होती है तो उससे लाइट भी डिम ही प्रोड्यूस होती है. उसके अलावा ऑयल एंड कैरोसिन लैम्प को भी यूज किया जाता है टू गिव आउट लाइट. ठीक है, यू कैन सी दिस इज द कैंडल फ्लेम, दिस इज द कैरोसिन लैम्प. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड ट्यूब. सी इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड ट्यूब्स को आज के टाइम पे वाइडली यूज किया जाता है लाइट प्रोवाइड करने के लिए एट द नाइट टाइम. ओके, बल्ब ग्लोज बिकॉज ऑफ अ टिनी वायर इनसाइड इट. एंड जो आपके बल्ब होते हैं क्यों ग्लो करते हैं? बिकॉज इनके अंदर बहुत छोटे छोटे से वायर्स होते हैं जिसकी वजह से दे प्रोड्यूस लाइट. So these were the different sources of light. And now next we come to the topic that is shadow. So light cannot pass through all objects. It cannot pass through your books. It cannot pass through your hand. What they're saying कि light जो है स्टूडेंट हर एक ऑब्जेक्ट से पास होकर नहीं जा सकती. जैसे कि आपकी बुक्स के थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती है, आपकी खुद की बॉडी के थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती, हमारे हैंड के थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती है. ऑलराइट, चलो. So a shadow is a dark shape formed by an object that blocks light. So एक्चुअल में जब लाइट आगे ट्रैवल कर रही है एंड बीच में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए जिसके थ्रू लाइट रेज पास नहीं कर पाती हैं, मीन्स उस ऑब्जेक्ट ने लाइट रेज के पाथ को ब्लॉक कर दिया, रोक दिया, तो वहां पर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जिसने लाइट रेज को ब्लॉक किया है उसकी शेडो बनती है. वहां पे एक ब्लैक इमेज बन जाती है. ठीक है, उस ब्लैक इमेज को, डार्क ब्लैक इमेज या एरिया को वी कॉल शेडो. एंड दैट शेडो किसकी है? of that particular object only which has blocked the path of the light rays. All right? See, we see shadows during the day. Usually आप कब डे टाइम पे शेडोज को देखते हो एंड उसके साथ साथ नाइट टाइम पे भी हम शेडोज को देख सकते हैं
व्हेन देयर इज अ लाइट सोर्स, जब वहां पे लाइट सोर्स होगा, ठीक है। तो सोर्स से लाइट रेज निकलेंगी, ऑब्जेक्ट पे फॉल करेंगी एंड वहां पे फिर सरफेस पे आपको शेडो दिखेगी। यू कैन सी ये शेडो है ड्यूरिंग द डे टाइम एंड दिस इज द शेडो ड्यूरिंग द नाइट टाइम। When there is bright sunlight, we can see the shadows of trees and building. जब बहुत ज़्यादा bright sunlight होती है तो आप क्या trees, buildings इनकी भी shadow देख सकते हैं। So thus 3 things are needed for a shadow to form. तो इस तरीके से एक shadow के formation के लिए 3 चीज़ों की requirement है। 3 things we require. Number 1 object. पहले वहाँ पे एक object होना चाहिए जो कि light rays को block करेगा। For example a tree. Then source of light, एक light source होना चाहिए। For example the sun. एंड सरफेस जहां पे इमेज का शेडो का फॉर्मेशन होगा वो सरफेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दी नाउ शेडोज आर ऑलवेज फॉल ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट। शेडोज का जो फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट, वो हमेशा जिस डायरेक्शन से लाइट रेज आती हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन पे शेडो बनती है। नाउ शेडोज चेंज इन लेंथ एंड डायरेक्शन। शेडोज जो है लेंथ एंड डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है इनकी। शेडोज कास्ट बाय द सन चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे। वो शेडो जो सन के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं वो एक दिन में अपनी जो साइज एंड शेप है वो चेंज होता रहता है। जो शेडोज का फॉर्मेशन लाइट के थ्रू होता है, सनलाइट के थ्रू। यू कैन सी ये आपकी शेडो है इन द मॉर्निंग टाइम एंड दिस इज द शेडो एट द नून टाइम। See, shadows are long in the morning and evening because the sun is low in the sky. What they're saying कि morning and evening time पे जो shadows बनती हैं वो थोड़ी long होती हैं because उस time पे sun की rays low होती हैं, slanting होती हैं on the object. But during the noon time पे shadows काफी short होती हैं because उस time पे sun directly overhead होता है, object के ऊपर होता है and बिल्कुल straight rays fall करती हैं on the object. Therefore वहाँ पे shadow उस time पर थोड़ी शॉर्ट बनती है एज कंपेयर टू द मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम। ऑलराइट, सी लाइट हेल्प अस टू सी ग्रो लिव एंड लर्न। लाइट के थ्रू आप देख पाते हो, यू आर एबल टू ग्रो, लिव एंड ऑल्सो टू लर्न। सो रिस्पेक्ट नेचुरल लाइट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड ऑल्सो हमें इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी चाहिए फॉर अ बेटर। दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। इट वाज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट एंड ऑल्सो द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ शेडो। Let's meet in the next session. Till then, keep going well and thanks to all.